Meenakshi Faculty of Allied Health Sciences, BSc Technology courses. Apply now. தட்டை, சீடை, முறுக்கு, ரிப்பன் போகடா, அதிரசம் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. ஒரே ஒரு 5 லிட்டர் இதய மந்த்ரா கடல் எண்ணெய் பேக் ஒரு மாசம் முழுசுக்கும் அத்தனை சமையல முடிச்சு விடலாம். இதய மந்த்ரா. இஸ்ரேல் ஈரான் நாடுகளிடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இரு நாடுகளும் மாறி மாறி ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டன. போர் பதற்றம் அதிகரித்ததால் ஏற்கனவே ஈரானில் இருந்த இந்தியர்களை மத்திய அரசு பத்திரமாக மீட்டு வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து ஆபரேஷன் சிந்து நடவடிக்கை மூலம் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு துரிதப்படுத்தியது. அதன் ஒரு பகுதியாக இஸ்ரேலில் இருந்து ஜோர்டான் வழியாக விமானம் மூலம் 161 இந்தியர்கள் பத்திரமாக டில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். இன்று அதிகாலை டில்லி வந்தடைந்த இந்தியர்களை வெளியுறவு இணையமைச்சர் பபித்ரா மார்கரெட்டா வரவேற்றார். அவர்களைத் தொடர்ந்து இன்னும் 165 இந்தியர்கள் இஸ்ரேலில் இருந்து ஜோர்டானுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு அங்குள்ள அம்மான் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான சிறப்பு விமானத்தில் டில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். இன்று காலை டில்லி வந்திறங்கிய 165 இந்தியர்களை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வரவேற்றார். டெல்லி வந்திறங்கியதும் இந்தியர்கள் ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தினர். இஸ்ரேலில் தங்கள் அனுபவம் குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது: இஸ்ரேலின் ஜெருசலேம் நகரம் தவிர பிற அனைத்து இடங்களிலும் நிலைமை மோசமாக உள்ளது. குறிப்பாக டெல் அவிவில் எப்போதும் குண்டுச்சத்தம் கேட்டபடி உள்ளது. இரும்பால் செய்யப்பட்ட பாதாள அறைகளில் பத்திரமாக தங்கியிருந்தோம். 22ஆம் தேதி எங்களை மீட்கும் நடவடிக்கை துவங்கியது. எங்கள் இடத்திற்கே வந்து மீட்ட நம் வெளியுறவு அதிகாரிகள் சாலை மார்க்கமாக ஜோர்டானில் உள்ள அம்மான் விமான நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அதிகாலை 3 மணிக்கு கிளம்பிய நாங்கள் பல மணி நேர பயணத்திற்கு பின் அம்மான் சென்றடைந்தோம். அங்கிருந்து விமானம் மூலம் குவைத் சென்று குவைத்திலிருந்து மற்றொரு விமானத்தில் டில்லிக்கு புறப்பட்டோம். எங்கள் விமானம் கத்தார் வான்வெளியில் பயணித்தபோது ஈரானில் இருந்து இஸ்ரேல் நோக்கி பாய்ந்த ஏவுகணைகளை பார்த்து மிரண்டு போனோம். அப்போது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதன் வான்வெளியை மூடிய தகவல் கிடைத்தது. இதனால் நடுவழியில் எங்கள் விமானம் திருப்பிவிடப்பட்டது. மீண்டும் குவைத் வந்தடைந்தோம். அங்கு எங்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது. 4 மணி நேரத்திற்கு பிறகு வேறு பாதையில் விமானம் பயணிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து புறப்பட்டு இன்று அதிகாலை டில்லி வந்தடைந்தோம். எங்களை பத்திரமாக மீட்ட மத்திய அரசுக்கு நன்றி என அவர்கள் கூறினர். படிப்பு, வேலை, தொழில், உறவினர்கள் சந்திப்பு என பல்வேறு காரணங்களுக்காக இஸ்ரேல் சென்றிருந்த 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் இன்று பத்திரமாக நாடு திரும்பினர். இன்னும் இஸ்ரேலில் 100கணக்கான இந்தியர்கள் உள்ளனர். அவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. Yeah, we are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv via Jordan. They are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. So, and we are remain committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our operation C to have arrived. You all are happy yeah. And one lady got emotional meeting. Yeah, definitely. The evacuees are obviously they are emotional because they are coming from war zone, and they are thankful to the government of India and especially to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji. And this is our duty to cooperate our own citizens. So we are doing. काम क्या नहीं है, बच्चा है मेरा लड़का इजराइल में, वो स्कूल लड़का हो गया, देखने का वास्ते हम गया था. उधर बहुत जोर में लड़ाई चालू है, बम बहुत पड़ता है. हम कम से कम 2 महीना हो गया है जाके भी का वो चालू है उधर लड़ाई रात दिन. नीचे आके बिल्डिंग का नीचे बैठता था. अंदर एक रूम किया है लकोंड का, इसके अंदर सब लोग बिल्डिंग का बैठता था. इसके साथ हम भी जाके बैठते. आप खुश हैं कि अपने देश में? हाँ जी, ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा हो गया, आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई. दुबई कोली. ओके, कहाँ से आ रही हैं आप?
अब इजराइल से आए हम, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी बहुत खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? जी। बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी और नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर, ऐसा लग रहा था कभी? हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, बहुत टेंशन में था हम लोग। अब आप खुश हैं कि अब अपने बहुत देश में आ गए? बहुत खुश, बहुत खुश है। मेरा नाम विशाल है, विशाल आप कौशिक। लोग कब तक वहाँ पे थे और कैसे आप लोग को वहाँ से निकाला गया? अगर सब कुछ आपको सब चीज़ बताइए। हाँ, तो हम लोग 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले और सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी, और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, हम थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। और हाँ, लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला, इट वाज वेरी ब्रेव एंड गुड। इजराइल में आप? इजराइल में हम थे, तो इजराइल से हमें जॉर्डन लेके गए, और जॉर्डन से कुवैत, और कुवैत से वापस इंडिया। बाय रोड जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई, क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट, और हम लोग फ्लाइट पे थे, और फिर वहाँ से घूम के हम वापस कुवैत आए, और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज़ का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड सर्विसेज एज वेल एज आवर एम्बेसी। थैंक यू। वहाँ पे तो हर रोज़ कोई ना कोई सायरन या अलर्ट बजते रहता है, डेली है, मिसाइल इंटरसेप्शन हो रहा है, और वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है वहाँ पे। आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले एक मिसाइल ईरान का इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेरशेवा करके एक शहर है वहाँ पे इजराइल में। तो यहाँ वहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है, मतलब इन सिनेरियो ऑफ कि सायरन कभी भी अलर्ट हो सकता है, वो सायरन कभी भी ऑन हो सकता है, तो हमें थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया में रहने को कहा जाता है। तो मैं खुद जेरूसलम में रहता हूँ, वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ इजराइल काफ़ी सेफ है, लेकिन तेल अवीव हो गया जैसे बाकी सिटीज़ है हाईटेक, उस कंपैरिजन में जेरूसलम बहुत सेफ है, लेकिन बाकी एरियाज़ में बहुत सारा डैमेज हो चुका है और बहुत सारे इंजरीज और इस तरह से चीज़ें हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली खाने पीने के लिए? हाँ, तो हम पहली बैच थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। हम 22 को निकले हैं और हम आज पहुँचे हैं, तो हमें लगभग 3 दिन लगा है। तो हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ है कि हम बाय ग्राउंड हम जॉर्डन पहुंचे थे, बॉर्डर क्रॉस किए, उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। सुबह 3 बजे हम 22 को हम निकले थे, और हम शाम के 9 बजे जॉर्डन में पहुंचे, अमन एयरपोर्ट में। वो जेरूसलम से ओनली 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें पूरा दिन लग गया जॉर्डन में अमन पहुंचने के लिए। वहाँ से हम कुवैत के लिए हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी, कुवैत टू दिल्ली एंड अमन टू कुवैत, कुवैत टू दिल्ली। उसके बाद हम कुवैत से भी फ्लाई कर चुके थे, दूसरे दिन अमन से जब फ्लाई करे उसके बाद कुवैत से फ्लाई किए। और जब हम कतर के ऊपर थे तभी हमने देखा कि मिसाइल जा रही, हम विंडोज से देख पा रहे थे कि मिसाइल जा रही है। और उसके बाद यूएई ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से हमको वापस हमारा एरोप्लेन रिटर्न मोड़ना पड़ा था, और हम वापस कुवैत गए। तो लगभग हमारा 4 आवर्स का वहाँ पे कुवैत में फिर से कुवैत सिटी एयरपोर्ट में हाल्ट हुआ। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हर वक्त हमें खाने पीने की सुविधाएं दी है, इवन उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, उन्होंने वाटर्स, इवन जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन खाना ही सबको प्रोवाइड किया गया है, जो इंडियन स्टाइल में दिया गया है। तो उन्होंने सब कुछ बेहतर दिया है।